India, a country, with multiple culture. With multiple culture, it holds multiple secrets too. कुछ ऐसे रहस्य है जो किसी के लिए सच या किसी के लिए झूठ. Hello, Namaste. welcome to This or that. where we separate myth and fact. So, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मैजिक. So basically, black magic is a very fascinating topic and people love to talk about it. But black magic comes with many mysteries and many other backdrops with it. So, before knowing about black magic, do we know about its history? So here I have Sujal with me, the so-called dad, who can tell you about what was the history of black magic. Sujal, over to you. ब्लैक मैजिक का मीनिंग यही है कि किसी पर्सन को किसी और को हार्म करना, राइट. और अगर ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री की बात करें तो इट टेक्स अस बैक टू 17th सेंचुरी. तभी से चालू हुआ था. बट बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ऐसे भी बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक सिर्फ 17th सेंचुरी से चालू नहीं हुआ, उससे बहुत पहले से. उसके बहुत पहले से बहुत सारे पार्ट्स से चालू हुआ वर्ल्ड के, राइट. फॉर एग्जाम्पल यूरोप का बात करें तो इट इज रिच कल्चर है, राइट. अफ्रीका का बात करें तो बूडो कल्चर है उधर. Okay, the things with doll. और अगर इंडिया का बात करें तो देयर इज दिस वशीकरण कॉन्सेप्ट. Like to possess someone over and to हाँ. make things happen with them. उनको फूड से या किसी और सोर्स से उनको खाने के लिए दे और वशी कंट्रोल करें. Right. So as you said, it is for harming someone, but I also feel कि उसके साथ एक और reason होता है basically to achieve goal. To achieve goal by harming someone. Okay. Like अगर आपको इसके पास से ये चीज happening, like we can take this movie in example. शैतान का movie था. There was an concept of Vashikaran, right? It was a concept of black magic. So it was achieving his goal to make some yajna possible by harming those girls. और उससे ही उसको पावर मिले. Right. So black magic जहाँ पर होता है वहाँ पर power होता है basically illegal power given by the black souls, black spirits. That's what I think. So there are many stories you can say. जैसे कि एक family था. So there was just two people का family and वो family में a boy was possessed and he was controlled by some other guy and the reason over that was just उसने वहाँ का पानी पिया था एक जगह पे जाके. तो ऐसे होता है कि आप कहीं जा रहे हो, आपने कहीं का पानी पिया, कहीं का कुछ खाया. So it is a point where we can think कि हाँ यार इधर से भी black magic हो सकता है. Black magic is possible with a hair also. Like if I take your hair, with that I can do voodoo, with that I can do witchcraft or any other black magic like thing possible with it to achieve my goal by harming. एक्चुअली मैंने ऐसे बहुत देखा है मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में. ऐसे कोई लोग रहते हैं जो अगर किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं तो वो घर का पानी नहीं पीते, इधर खाते नहीं हो. दे जस्ट गिव रीजन कि नहीं आई डोंट ईट दिस दैट. मतलब उसके पीछे का रीजन हम लोग को पता नहीं था. तो मैंने बहुत सोचा तभी भी इतना कुछ पता नहीं चला कि क्या रीजन रहेगा, पॉसिबल रीजन रहेगा उसके पीछे. बट देन आफ्टरवर्ड्स आई गिव अ थॉट कि लोग खाने से, लोग किसी के बाल से, लोग बोलते हैं कि आप चम्मच नहीं तो कुछ भी खाना है जो झूठा कर रहे हो वो भी नहीं रखना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए, प्लेट में नहीं रखना चाहिए किसी को खाने के पास. तो ऐसे सब होता है. Right. And we actually don't know, right? Because black magic हो गया या फिर ऐसे कुछ superstitious activities हो गए, उसमें they are different kind of languages. As much as I know, because I have a personal experience, जहाँ पर a person was asking one of my family member all the details, the other person was listening from somewhere else, and that person comes to my place and says the same ditto thing what my family member said to that another guy. जो उसने दूसरे को बोला था कि ये था, वो बंदे ने आके उसको सेम टू सेम बोला. So people who are not actually educated, literate, या फिर जिसको ज्यादा भरोसा superstition में, they feel like यार this is some kind of super power or some kind of magic there. क्योंकि वो उनका फ्यूचर बता रहे हैं, पास्ट बता रहे हैं, Right. प्रेजेंट बता रहे हैं. बट तुमने ही बताया वो तुमको पता नहीं चला. एक्चुअली आई टेल यू दिस स्टोरी कि हम लोग के इधर भी ऐसे ही हुआ था.
4 लोग आए थे, ठीक है। 3 लोग उनसे बात कर रहे थे घर वालों के साथ, बराबर। और एक बंदा मेरे साथ बात कर रहा था। वो मेरे को उस फैमिली के बारे में पूछ रहा था कि वो फैमिली में कितने बच्चे हैं, उनको उनका फैमिली का प्रोफेशन क्या है, मम्मी पापा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वो क्या मेरे से इधर से पूछ रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज दैट द पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी is talking to those person through sign languages somewhat like this. तो मतलब वो ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि लोगों को पता ही ना चले, और उस फैमिली को ऐसे लग रहा है जो कुछ बता रहे हैं वो लोग बता रहे हैं। बट देन आई एम टेलिंग दिस पर्सन, मैं उनका नेबर हूँ जो इनको बता रहा है, और वो ही ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके उधर दे रहा है। राइट, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, बट विद द साइन लैंग्वेज एंड पीपल फील इट इज अ ब्लैक मैजिक थिंग। एंड ऑफ कोर्स लाइक इफ पीपल डोंट नो तो उनको वही लगेगा कि ये ब्लैक मैजिक है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं स्टोरीज के बारे में, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास जो है। इंटरेस्टिंग से ज्यादा अगर हम दूसरा वर्ड यूज करें तो काइंड ऑफ अ ब्रूटल स्टोरी बोल सकते हैं, बिकॉज ब्लैक मैजिक में सैक्रिफाइस दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सैक्रिफाइस, देयर इज अ स्टोरी, एक विलेज का स्टोरी है जहाँ से मैं हूँ। सो वहां पर ऐसे हुआ था कि एक बच्चा, ही वॉज अराउंड 6 years old. सो ही वेंट, उसने एक्चुअली क्या बोला मम्मी को अपने, मेरे दोस्त का बर्थडे मैं जा रहा हूँ। एंड देन वो चला गया उसके दोस्त के बर्थडे के लिए, बट 2 दिन बाद उसके फैमिली को उसका लाश मिला। सो बेसिकली सर्च ऑपरेशन का नॉट हुआ, तो लाश एक पॉन्ड में था। एंड जो वो बॉडी का जो अवस्था था, इट वॉज बेसिकली उसका दोनों हाथ बांधा था, दोनों पैर बांधा था, एंड ही वॉज लाइक ऑल इन कुंफू, एंड आजू बाजू में लेमन, एंड some kind of brutal thing, जैसे कि nails वगैरह ठोका हुआ था. So this is a kind of sacrifice. Maybe he was being used for some yajna, for something which is basically used for the darker side of spirits. And उसके हिसाब से we have another story like city का story बोलते हैं. जैसे कि मैंने बोला sacrifice. So people where we people think जहाँ पर हम कुछ बना रहे हैं या फिर हम कुछ build कर रहे हैं, तो देयर शुड बी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड एटलीस्ट जहां पर गिरे, जहां पर बलि चढ़े, एंड विद दैट दे फील कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा. तो यहाँ पर एक मतलब कोई बिल्डिंग तैयार हो रही थी, तो ये भी मैंने स्टोरी सुना हुआ है, बट इट कैन बी दिस और इट कैन बी दैट, लाइक इट कैन बी अ मिथ और अ फैक्ट. तो बेसिकली ऐसे बोला था कि देयर वाज एन हैंडीकैप्ड गाय who was like used to roam on wheelchair and suddenly one day गायब हो गया. ओके. एंड उसका बॉडी मिला ही नहीं, वो क्यों भी मिला नहीं बेसिकली. तो वो बोलते कि जो नया बिल्डिंग चल रहा था ना, उसकी जो फाउंडेशन में है उसको उसके अंदर उसका मतलब बलि चढ़ाया था, बोलते हैं. ठीक है, अगेन वी डोंट नो व्हाट्स द ट्रुथ, बट ऐसा बोलते हैं. एंड दीज आर द स्टोरीज, बट वी कैन नॉट डिनाई इट टोटली, बिकॉज वी कैन नॉट से इट इज कि ये रॉन्ग है, क्योंकि आज भी होता है. सो वी कैन अग्री ऑन दैट कि ऐसा हुआ हो सकता है कि there was this guy who just vanished and then a new construction work was going on, maybe वहाँ पर उसका बलि चढ़ा है. तो आपने ऐसे बोला ब्लड के बारे में, सिर्फ ब्लड के बारे में, मतलब द मेन थिंग इज ब्लड. मेरे को इससे एक चीज याद आया. मेरी मम्मी बहुत पहले से बोलती थी कि ऐसे जिधर मतलब नया कंस्ट्रक्शन एरिया है या कोई प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, उधर जाओ ही मत. राइट, जाओ ही मत, क्योंकि मतलब उनको भी पता है, बहुत सारी स्टोरीज है ऐसे. गांव में भी ऐसे हुआ था, मतलब ब्रिज बन रहा था हमारे इधर. तो लोगों ने क्या किया, उनको बोला, एक कपल था और उधर एक आदमी कपल लगता है, तो ऐसे मतलब माइट बी सुपरस्टिशन, बट कोई बोलता है कपल लगता है, कोई बोलता है एक आदमी की बनी लगती है. तो कपल को बोला कि ऐसे ऐसे एक काम है, करना है, वो जाते हैं. ठीक है, तो वो ब्रिज बन रहा था और उनको लेके गए, उनको ऊपर से ढकेला नीचे, और देन वो ब्रिज ये हुआ. और वो बोलते कि अगर वो मतलब दिया ही नहीं सेक्रीफाइस, तो वो ब्रिज रहेगा ही नहीं. राइट, वो बीच में टूट जाएगा. राइट, उनका बिलीफ ऐसा है. सो आई डू ऑल्सो फील कि जब बोलते हैं ना सैक्रिफाइस, तो इट इज नॉट जस्ट सैक्रिफाइस, मतलब आप लेके जाके किसी को बलि चढ़ा, ऐसा नहीं होता है. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पेन. There should be some kind of pain. जैसे कि मैंने बोला ना कि उसको जिंदा धकेल दिया उसने, तो जिंदा धकेलना अब ह्यूमन who is dying alive, जो उसको पता है उसके साथ में क्या हो रहा है, that is very dangerous. Yes, actually.
मेरे को ये भी ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल बहुत सारे लोग हैं ये सेक्रीफाइस को पॉजिटिव वे में भी लेते हैं। Then वो ऐसे भी बोलते हैं कि सेक्रीफाइस हम लोग किसी को चूज नहीं करते हैं सेक्रीफाइस होने के लिए और करने के लिए, वो ही हमारे पास आते हैं सेक्रीफाइस होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी दो लोग हैं या एक आदमी है राइट, उसको पैसे की जरूरत है, उसकी फैमिली पालनी है, तो ये लोग उनको ऑफर करते हैं ओके आई गिव यू मनी यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली फ्यूचर। तो ऐसे भी होता है। Right, pretty much possible because end of the day, for money, people do these things. And to be honest, when we talk about black magic, this kind of topic is basically it has two ways part. Like it can be true, it cannot be true. So it can be this or it can be that. Now that we say that black magic exists, right? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ऐसा भी क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं जो बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक कि तुम लोग क्रिमिनल्स के ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों नहीं कर सकते? अगर क्रिमिनल्स के ऊपर ब्लैक मैजिक करे तो क्रिमिनल्स रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में। बिकॉज जस्टिस के बारे में बात किया जाए तो जस्टिस इज ऑलवेज ए डिले प्रोसेस। तो पीपल आस्क क्वेश्चन कि तुम लोग क्रिमिनल्स के ऊपर करो और देखो। और ये इससे मेरे को एक इंसिडेंस याद आता है कि एक आदमी था राइट, ही डिड नॉट बिलीव इन दिस ब्लैक मैजिक एंड ऑल। तो वो जो ब्लैक मैजिक करता था उनके पास गया राइट, और उसने खुद का ही नाम बताया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है, मेरे को इसको मार देना। बट बताया ऐसे कि वो मेरा दोस्त है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया बराबर। तो अघोरी ने ब्लैक मैजिक किया, ये जो बंदा गया उसके ही नाम पर ब्लैक मैजिक हुआ। बट वो बहुत सारे पॉडकास्ट पे आके बोलता है, यूट्यूब पर आके बोलता है कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो मरा ही नहीं, मैंने मेरा ही नाम दिया था उधर, जस्ट बताया था कि ये मेरा दोस्त है। क्योंकि अगर मैं मेरा नाम ही बताता कि मैं ही हूँ तो वो कर ही नहीं रहते ब्लैक मैजिक राइट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग उठाते हैं। And I feel कि अगर ब्लैक मैजिक का बात होता है तो it is not a person with good heart would like to do it. किसी का अच्छा मन है या किसी because and again as we say ना कि हम भगवान के पास जाके ये तो नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल XYZ बंदा है, वो बोल रहा है कि ये बंदे ने मेरा प्रॉपर्टी लिया, इसको मेरे इससे हटा दो रास्ते से and then I'll be the owner of the property. So you cannot go and say this to God. Because when we talk about God, भगवान ये सब पॉजिटिव चीजें आती है वहाँ, ठीक है। ये सारी जो चीजें we can just go towards the bad side, that is the black magic. We cannot call it as a bad side, but for some people it is a very good side we can say. क्योंकि वहां पर आप बोल सकते हो कि मेरे को ये बंदा पसंद नहीं आ रहा है, उसको हटा दो एंड काम हो जाएगा। ब्लैक मैजिक है ना। So it is the audience who is gonna separate it. कि आपको क्या लगता है? It is basically truth or it is a myth kind of a thing. So when we separate these things, तो उसमें ऐसा होता है कि इसमें दो चीजें निकल के आती है कि black magic is just a financial scam और black magic is real. ठीक है? So in this dynamic world, we can say both the things are true. ठीक है, बट फॉर एवरी पीपल देयर आर डिफरेंट बिलीव्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई कैन से दैट कि ब्लैक मैजिक इज नॉट ट्रू, इट इज समथिंग अ फाइनेंशियल स्कैम, या फिर सिर्फ लोग ऐसे ही बोलते हैं बट दिस इज डजंट हैव एनी प्रूफ। बट अ गाय लाइक यू वुड लाइक टू से दैट ब्लैक मैजिक इज रियल, यू हैव सीन द प्रूफ्स। ठीक है, सो either it can be this or it can be that. Now you are the deciding factor, right? Now it's in your hand to either be at this side Or that. Follow us for such more content and subscribe to our YouTube channel. This Or that.